All right. Good evening, everyone. Hi, Pratmesh. Good evening. All right. Let me mute everyone. All right. Great, great. All right. So, yeah. Good evening, Anjali. Good evening, Krishi. No, we are starting the lecture right away, Manas. तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम फंस गए हो. अब तो क्योंकि तुमने बता दिया है तो I would ask questions from you directly. मानस, चलो अनम्यूट करो. मिल गए तुम मुझे. Yes, sir. कहाँ जाना है तुम्हें? Nowhere. ऐसे ही पूछ रहा था. नहीं, अब तुम मुझे बता नहीं रहे हो, वो बात अलग है. चलो ठीक है. All right, so great. I think most of the students have joined in. हम लोग discussion start कर सकते हैं आज का. Last class में हम लोग कहाँ पर थे? All right, so last class में yes, हम लोगों ने case of limiting reagent के बारे में पढ़ा था. Right, so we were discussing the step-by-step methodology to deal with the case of limiting reagent, and मैंने आपको एक दो examples भी कराए थे to work with the case. Right, one of the most important things that you would have realized while doing the homework is that questions में लिख के नहीं आता whether it is a case of limiting reagent or not. You yourself have to do the analysis. Right, so आपकी problem solving methodology में ही ये embed हो जाना चाहिए. So if you follow the step by step method, right, जैसा मैंने आपको last class में बताया था, that you write the balanced equation, you calculate the moles, and then you identify whether it is a case of LR or not. Once you do that, then analysis with respect to LR would help you get the answer. ठीक है, अब हम धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल और बढ़ाते जाते हैं. So in the last class, all we did was just analyzing a single reaction. एक particular reaction में अगर reactants and products दिए हुए हैं तो कितने amount से कितना बनेगा. ठीक है. Now let's say if there are multiple reactions happening, then how do we proceed? ठीक है. So all right, give me 1 second. So we'll now धीरे धीरे increase the difficulty level. So let's start with the series reaction. Just give me 1 second. Let me shut the gate. Give me 1 minute. All right. So yeah, as I was saying, अब हम लोग सीरीज रिएक्शन का डिस्कस करेंगे. What do I mean by series reaction? That एक के बाद एक successive reactions हो रही है, and you have to identify or you have to tell me कितने reactant से कितना product बनेगा, और vice versa. So theory कुछ नहीं है. This is a problem solving method only. So observe करना. Let me take a simple example to begin with. You have A plus 2B is giving 3C plus 4D, and
this C dissociates to give 2E, right? And E combines with the, or you can say 3E combines with F to give you 4G. All right. Yeah. So they have a chain of reactions happening one after the other. Now, let's say अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है if we start with 1 mole of A while other species are kept in excess, then determine the moles of G formed. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्राई करो. नहीं जलज, आपका आंसर सही नहीं है. अलीना, आपका आंसर सही है. सुमित, प्रथमेश, दर्शना, ऋग्वेद, सानिध्य, नहीं, सबका आंसर गड़बड़ हो रहा है. हाँ कुणाल, आपका आंसर सही है. नहीं मानस, केदार का सही है. यस. लावण्य का सही है. सुमित नहीं, गड़बड़ गड़बड़. ऋग्वेद का भी गड़बड़ है. ईशान का भी गड़बड़ है. विभा का सही है. यस. ऑल राइट, सो लेट मी गिव द आंसर नाउ. आई थिंक जिनको आना था उनका आ चुका है. सो करेक्ट आंसर इज 8 मोल्स. ठीक है. अब किस तरीके से ये आंसर पे हम लोग अराइव करते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. सो वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी. जो केयरलेस मिस्टेक आप लोग कमेंट कर दोगे, मैं उसके लिए बता रहा हूँ. कोफिशिएंट्स are to be used for analysis within the reaction. ठीक है, not between reactions. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी जहाँ पे कई स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक करते हैं. अब इसको समझना what it means exactly. So आपके सामने पहला रिएक्शन ये था कि A plus 2B is giving 3C plus 4D, right? And ये 1 है, ये excess है. ठीक है, ये बने ही नहीं थे. This was what you were in the start. ठीक है. Now what will happen in the end of the reaction? ये A पूरा कंज्यूम हो जाएगा और इससे C कितना बन जाएगा. ठीक है. तो आप ये कोफिशिएंट बेस्ड एनालिसिस करोगे. A का कोफिशिएंट 1 है, C का 3 है, तो 1 मोल से my answer should come out to be 3 moles. ठीक है. Now अब आप ऑब्जर्व करना, in the next reaction you went from C to 2E. ठीक है. अब यहाँ पर एनालिसिस मत करना. ठीक है.
ये जो 3 मोल है ये एज इट इज यहीं पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। नो एनालिसिस बिटवीन रिएक्शंस, ठीक है। एनालिसिस इज टू बी डन विद इन द रिएक्शन। तो जो 3 मोल्स आपने करे वो अब एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, that start of this reaction we have 3 moles and nothing of E, and when this reaction is done this is completely consumed. How many moles will be formed? Now again do the analysis. C का कोफिशिएंट 1 है, E का कोफिशिएंट 2 है, तो 3 मोल से कितना मोल बनेगा, and you will get your answer as 6 moles, ठीक है। Again follow the same thing. Now you have to proceed from E to, क्या रिएक्शन था थर्ड वाला, 3E plus 4F, okay 3E plus F, sorry 3E plus F is equal to 4G, ठीक है। Again you don't have to do analysis between reactions, just as it is इसको transfer कर दो, ठीक है। In the start you have how many, 6 moles, ठीक है। Don't bother about coefficients between reaction, as I will say again, no analysis between reactions, just as it is, जितने moles बने उनको as it is transfer करो. So you have 6 moles of E and F तो excess में दे रखा है. So what will happen in the end? E will get consumed. अभी analysis कर लो between within the reaction. E and G के बीच में क्या होगा, 3 से 4 बन रहा है, that is their coefficients, तो 6 से कितना बनेगा. So you will get your answer. This comes out to be 8 moles. That's your answer. Is this clear? Let me zoom out. देख लो आप किस तरीके से फ्लो करा एनालिसिस का. हाँ मानस, मेरा एग्जैक्टली वही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया, इसमें किसको कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। अब आप ऑब्जर्व करना, इसमें अब कई बार कॉम्प्लिकेशंस कैसे आती हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक द सेम एग्जांपल्स, ठीक है। I'll just copy paste this entire thing again. All right, so you have the same situation with a minor change. If we start with 1 mole each of A, B and F, ठीक है, then determine the moles of G. शुरू हो जाओ.
हाँ, आई थिंक काफी स्टूडेंट्स अब सही आंसर दे रहे हैं. राइट. हाँ, so the correct answer is 4 moles. हाँ, अब ऑब्जर्व करना किस तरीके से हम लोग सेम सेम तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं. बट द हिडन थिंग इज यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग लर्निंग आ रही है, ठीक है, ओवर एंड अबव जो हम लोगों ने ऊपर लर्निंग देखी थी. अगेन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई if it's a case of limiting reagent. So identify and take care of limiting reagent. ये इसकी सबसे बड़ी लर्निंग रहेगी. सो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, पहला रिएक्शन मैं देखता हूँ. A plus 2B is giving 3C plus 4D. ठीक है, ये रिएक्शन था. एंड स्टार्ट में अब आपको इनके 1 मोल दे दिए हैं. ठीक है. सो नाउ इफ I'll proceed a little faster. ठीक है. So what I'm going to do and say here is that can you identify that B will be the limiting reagent here? Moles upon coefficient से. ठीक है. अब मैं कल की क्लास जितना इलाबोरेट करके नहीं बताऊंगा. ठीक है, अदरवाइज मैं मतलब हर क्लास में सिर्फ 3 एग्जाम्पल करा पाऊंगा. तो अब मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड पिक करूंगा. तो आई होप आप लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करके नहीं आए हो, सॉरी आए हो. इन केस अगर आप रिवीजन नहीं करके आए हो तो फिर यू विल स्ट्रगल. सो एज यू कैन सी मोल्स अपॉन कोफिशिएंट से मुझे पता पड़ गया बी लिमिटिंग रिएजेंट है. नाउ व्हाट विल हैपन इन द एंड, द लिमिटिंग रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली and how much amount of C is going to be formed is going to be decided by the limiting reagent only. तो इनके कोफिशिएंट 2 and 3 हैं, तो 1 से कितना बनेगा? I'll get my answer that this comes out to be 1.5 mole. ठीक है. Now, all right. So अगले इसमें देखो, अब अगला लिखा हुआ था C is giving 2E. तो इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है. इसमें तो मतलब all we need to do is just transfer this 1.5 mole directly to here, and in the end it will get consumed, and as you can see, ठीक है, इसके 3 moles बन जाएंगे. ठीक है. We do the analysis. C का कोफिशिएंट 1 है, E का कोफिशिएंट 2 है, तो 1.5 से कितना बनेगा? Then there was this 3E plus F was given 4G. ठीक है. एंड यहाँ पर अब आप नोटिस करना, in this case now in the start you have 3 moles of E but 1 mole of F. ठीक है. So यहाँ पर again if you do moles upon coefficient, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, या यू कैन से दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. सो आप किसी के भी हिसाब से एनालिसिस कर लो, आंसर सेम ही आएगा. दोनों ई एन एफ पूरे कंज्यूम हो जाएंगे एंड इन द एंड यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ जी. ठीक है. यहाँ पर बोथ E and F are limiting reagent, so can do analysis
with respect to either of them. ठीक है, that is how we arrived at the answer. मैं एक बार zoom out कर लेता हूँ. राइट आई थिंक समझ में आ गया होगा. सो ये था सीरीज रिएक्शन का पार्ट, सीरीज रिएक्शन का क्वेश्चन विच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से आपको लिख कर दूं तो. ठीक है, ओके. मानस, आपका डाउट नहीं समझ में आया मुझे. इसमें मोल्स को स्लैश कब लेते हैं, मतलब व्हाट डिवीजन आर यू टॉकिंग अबाउट? लेट मी अनम्यूट यू. एक बार हैंड रेज करो अपना. हाँ बोलो. सर हाँ, हम इसमें डिवीजन में कब लेते हैं, मतलब बाई में कब लेते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल B to C किया तो हाँ. 2 1 and 3 क्वेश्चन मार्क, 3 by क्वेश्चन मार्क. तो इसमें हम लोग कब लेते हैं, मतलब ऊपर कब लेते हैं और फिर नीचे कब लेते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई ऊपर नीचे डिवीजन, मतलब ये एनालिसिस तो फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया ना, कि हम लोग स्टार्ट में देख रहे हैं कितने मोल्स हैं और जब रिएक्शन खत्म हो रहा है तब कितने मोल्स हैं. मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पर. आई थिंक I mean cross में. When are we taking in the up one and down one in the cross division? Okay, in B1 I took 1 in the up and 2 in the down, so I got 6 in total rather than 1.5. राजा, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? हाँ, ये इसमें कैसे होता है? हाँ भाई भाई भाई, मतलब ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ऐसे करते हैं. ठीक है, ये जो मैंने बीच में क्रॉस का साइन लगाया उसका मतलब होगा कि आप 2 को उसके डायगनली ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करो और 1 और 3 जो डायगनली ऑपोजिट है उनको मल्टीप्लाई करो और इक्वेट कर दो. तो yes sir. इससे समझ में आया? yes sir. But then मैं ये पूछ रहा था कि अभी A plus 2B is equals to 3C plus 4D. हाँ, तो फिर 2 इसमें मतलब आया कैसे, मतलब it should be like 1 ऊपर आएगा और कोफिशिएंट 2 है ना. नीचे आएगा ना, तो ये जो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं 2 and 3, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं. ओके सर, अंडरस्टैंड. ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से अपन कोफिशिएंट्स को रीड करते हैं ना कि 2 मोल से 3 मोल बन रहा होगा, तो फिर 1 मोल से कितना मोल बनेगा? ओके हाँ, तो moles and down and then this coefficient in up bar. अंडरस्टूड सर, थैंक यू. उल्टा भी कर दोगे तो भी चलेगा. मतलब तुम अगर ऐसे भी लिख दोगे, यहाँ पर नीचे 2 3 लिख दोगे और ऊपर ये कर दोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, बट ठीक है, यस कोई सर. एक मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करो. पहले ऊपर कोफिशिएंट लिख लो कि कितने से कितना बनेगा, वो आप कोफिशिएंट से रीड कर सकते हो. एंड देन फिर नीचे मोल्स लिख लो कि अच्छा इतने मोल्स दिए हैं तो फिर कितने मोल्स बन जाएंगे. ठीक है, थैंक यू. ऑल राइट. अच्छा, और किसी को कोई डाउट था इसमें? अर्पित का भी कुछ डाउट है. इन केस इफ इट इज नॉट द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट देन विल बोथ द रिएक्टेंट्स बी कंज्यूम्ड. हाँ, मतलब फिर उस केस में यही हो जाएगा कि स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में होंगे अर्पित तो सब रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे. ठीक है. एंड रुद्र का क्या डाउट है? वाई इज 2B एंड नॉट A? नहीं रुद्र, समझ में नहीं आया.
Why is 2B limiting reagent and not A? हाँ, सो रुद्र, आपके लिए स्पेशली मेरा यही एडवाइस रहेगा कि पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ. If you are going to ask me a question like this, that why is B the limiting reagent and not A, तो I can for sure say that आप बिना पिछली क्लास का रिवीजन करके आ गए हो. पिछली क्लास का पढ़ के आओ. हाँ मानस, कुछ बोलना है आपको? नो सर, अच्छा, सबका ठीक ठीक. All right, so coming back, this was a series reaction का केस जिसमें मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे. मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊंगा एंड क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने पे बढ़ती जाएगी. ठीक है. अच्छा, समटाइम्स क्वेश्चंस कैन बी मेड आल्सो स्लाइटली डिफिकल्ट बाय देयर लैंग्वेज. ठीक है. Many times I have seen students finding it a little bit challenging to understand the language of the question also. So that is also a situation जो धीरे धीरे ही improve होता है. ठीक है. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. I'll share one example with you. आपके बुकलेट में से ही मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ and the difficulty level in that question is primarily because of the language of the question. ठीक है. So just a second, I'm just copying the question. All right, so this is the question in front of you. Let's see if you are able to understand it. पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3. ठीक है. सो थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ. चलो, पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3. एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज Al2O3. ठीक है. पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले होमवर्क में दिया था, तो उसमें मैंने इक्वेशन लिख के दिया था आपको. हाँ जलज, आयुर, ऋग्वेद, हाँ प्रथमेश, सानिका, केदार. ठीक है, आप लोगों के आंसर करेक्ट है. उजल, आपका आंसर गड़बड़ है, कुछ गलत किया है आपने. मानस, आप भी चेक करो, आपने भी कुछ गड़बड़ की हुई लग रही है. सो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, थोड़ा लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी टेस्ट हो गया. ठीक है. अगर यही क्वेश्चन को मैं इक्वेशन लिख के आपको दे देता ना, तो शायद आपके लिए काफी आसान हो जाता. तो KClO3 को जब डिकम्पोज करते हैं तो KClO3 से बनता है KCl एंड O2. ठीक है. ये इसका गैशियस प्रोडक्ट है. एंड एल्यूमिनियम को इसी गैशियस प्रोडक्ट में जब हीट करते हैं
तो उससे बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो दीज आर द रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। अगर मैं ये लिख के दे दूं तो आपके लिए अभी क्वेश्चन काफी रिलेटिवली आसान हो जाएगा। अभी ट्राई करो बाकी लोग भी। हाँ, सानिध्य, श्रेया, अनु, राइट, शेखर, सुमित, सबका आंसर अब करेक्ट आ रहा है। गुड, राइट उज्जवल, अब आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब सिंपल सा हो गया ये कि स्टार्ट में इसका अगर 1 मोल है, राइट, तो एंड में ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा, इसका 1 मोल बनेगा और इसका 3/2 मोल्स बन जाएगा। ठीक है, कैसे दिख रहा है वो? कोफिशिएंट से दिख रहा है। एंड अब यहाँ पर एल्यूमिनियम तो एक्सेस में बोला जा रहा है और O2 को एज इट इज ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो ये 3/2 मोल्स O2 के रहेंगे। तो उससे अब कितना, ठीक है, इसमें मेरा O2 जो रहेगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सेस में दिया हुआ है। तो मेरा O2 के हिसाब से ही एनालिसिस होगा, तो O2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखो कैसा दिख रहा है, O2 का कोफिशिएंट एंड just 1 second. O2 का कोफिशिएंट is 3/2 and Al2O3 का कोफिशिएंट is 1। तो अगर O2 के 3/2 मोल्स हैं तो Al2O3 के कितने मोल्स बन रहे हैं? You get the answer as 1 mole। ठीक है, all right, so ये था series reaction and many a times you will come across such reactions with different concepts mixed with them। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। Now let's discuss the case of parallel reaction। ठीक है, and what do I define as parallel reaction, वो मैं आपको specifically बताता हूँ। So let's understand the case of parallel reaction। ठीक है, so observe करना, when the definition wise, ठीक है, when same set of reactants undergo 2 or more simultaneous reaction, then it is a case of parallel reaction। ये इसका definition हो गया। ठीक है, same set of reactants, they undergo different reactions। so जैसे observe करना, for example कार्बन एंड O2 को आपने मिक्स करा तो हो सकता है CO2 बना दे, या फिर हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फॉस्फोरस एंड O2 को आपने कंबाइन करा, हो सकता है P4O6 बना दे, राइट, हो सकता है P4O10 बना दे। ठीक है,
और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जस्ट आई एम गिविंग यू दैट सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स अंडरगो डिफरेंट रिएक्शंस। सो इस केस में we will have to think that how much of reactants go in one reaction and how much of reactants go in the other reaction, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन मान लो 100 ग्राम्स है, तो कितना ग्राम CO2 बनाने में जा रहा है, कितना ग्राम CO बनाने में जा रहा है, हो सकता है हमें ये डिसाइड करने के लिए डेटा दिया जाए, ठीक है। डिपेंड करेगा डेटा ऑफ द क्वेश्चन पर, ठीक है। तो लेट मी टेक one example with data, and then let's explore how do we get the answer to it. So question आपके सामने है, if 12 grams of carbon completely consumes 20 grams of oxygen gas to form CO and CO2, then determine the ratio of moles of CO to CO2 produced. All right. ट्राई करो, थोड़ा सोचो क्या आ रहा है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं आंसर करने के। नॉट करेक्ट ईशान। नहीं मानस, नहीं श्रेया, नहीं रुद्र, प्रथमेश, नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं है। आप ठीक है, आपने आंसर जब देते हो ना, तब उसको चेक भी करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड सोचो, ठीक है। बिकॉज द मोर यू चेक इट द बेटर यू विल गेट एट आंसरिंग इट। हाँ ऋग्वेद, आपका आंसर सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी सारे स्टूडेंट्स 1:1 का रेशियो मुझे बोल रहे हैं, तो अगर 1:1 का रेशियो है, सो कैन यू बैक कैलकुलेट, एंड मान लो अगर मैं आपको बोलूं 1:1 के रेशियो में CO और CO2 बनाने हैं, तो कितना कार्बन एंड कितना ऑक्सीजन लगेगा, डज इट confer with the data that is given to you?
नहीं, अभी तक तो सिर्फ एक ऋग्वेद का ही आंसर सही आया है। नहीं नहीं सानिध्य। सो लेट मी चलो गिव यू अ हिंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आई विल हैव मल्टीपल वेज, ठीक है, बट लेट मी शो यू द फर्स्ट वे। एंड इन द फर्स्ट वे what I will do is keep the reactions separate. So my reaction is carbon plus O2 is giving CO2, that is one reaction, and the other reaction is carbon plus half O2 is giving carbon monoxide. Okay. Now what I have as a hint for you is let the moles of CO2 formed, ठीक है, CO को बोल देते हैं, let the moles of CO formed be X and let the moles of CO2 formed be equal to Y. ठीक है, मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, देखो अगर आप अब कुछ फिगर आउट कर पाते हो क्या। शेखर अभी थोड़ी देर ट्राई करो, और मैंने अभी पूरा समझाया नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है कि let the moles of CO formed be X and CO2 formed be Y. हाँ सुमित, आपका आंसर भी सही है। नहीं, बाकी लावण्य, मानस, शेखर, नहीं, आप लोगों का आंसर अभी सही नहीं आ पाया। देखो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट मी टेक दिस ऊपर, let the moles of CO and CO2 formed be X and Y। तो अब कैसा रहेगा, पहले रिएक्शन का एनालिसिस करना। पहले रिएक्शन में आपको क्या बताया जा रहा है कि इसके Y मोल्स बनने हैं, ठीक है, अगर इसके Y मोल्स बनने हैं, ठीक है, मैं इस बार रिवर्स मैनर में जा रहा हूँ, ठीक है, अभी तक हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो, बट इट इजंट अ बिग डील, मैं उल्टा भी जा सकता हूँ ना,
मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना y मोल्स बनाने के लिए कितना कार्बन का मोल्स लगेगा, द आंसर विल बी सेम y। क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है एंड O2 का भी कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसको भी y मोल्स ही लगेंगे, राइट? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, रिवर्स मैनर में भी तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ रिएक्शन को, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करना, CO के लिए बोला जा रहा है x मोल्स बनेंगे, तो क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के कितने कितने मोल्स लगेंगे? तो अभी कार्बन का कोफिशिएंट भी 1 है और CO का कोफिशिएंट भी 1 है, तो यहाँ पर कार्बन भी x मोल्स लगेगा। एंड अगर मैं O2 का देखूंगा कोफिशिएंट, तो O2 का कोफिशिएंट हाफ है और CO का कोफिशिएंट 1 है, राइट? सो हाफ से 1 बन रहा है, तो x बनाने के लिए कितना लगेगा? I'll do a cross multiply and I'll get the answer that x by 2 मोल्स लगेंगे, है ना? सो नाउ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, टोटल कार्बन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई मोल्स, दोनों में इतना लगेगा। एंड हमारे पास कितना है? 12 ग्राम्स, तो ये कितना होना चाहिए? 12 बाई 12। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से आप देखोगे ऊपर से y आ रहा है और नीचे x बाई 2 लग रहा है, तो x बाई 2 प्लस वाई मोल्स लगेगा। एंड कितना मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का? 32, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। ठीक है, उसका मास दिया हुआ है 20 एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो इतना मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है, अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट x एज x आ जाएगा 1/4, नहीं x आ जाएगा एक्चुअली 1/4 एंड y आ जाएगा 3/4, है ना? 1/8 प्लस 3/4, 6/8, 7/8, नहीं उल्टा हो रहा है क्या? एक मिनट, मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। x by 2 will be 12/32, y is 3/4, नहीं सॉरी x is 3/4 आ रहा है, हाँ, x 3/4 आ रहा है और y 1/4 आ रहा है। ठीक है, राइट। सो यहाँ पर अब आपका रेशियो आ गया। हमको रेशियो क्वेश्चन में क्या पूछा था? CO और CO2 का, यानी कि x/y पूछा है, राइट? सो मोल्स ऑफ CO to moles of CO2 will be x upon y, which will be 3/4 upon 1/4, which is 3:1. That is your answer। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ, आप लोग देखो हम लोगों ने कैसे करा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स छुपे हुए हैं इस क्वेश्चन में, एंड ट्रस्ट मी, आई एम श्योर अभी आपको धीरे धीरे ये चीजें स्ट्राइक हो रही होंगी, दैट अ लॉट ऑफ लर्निंग is going to come from questions। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि थ्योरी पार्ट क्या है, तो मूल कंसेप्ट में थ्योरी पार्ट ना आपका हो गया है, अभी और कुछ थ्योरी है ही नहीं बचा, कितने से कितना बनेगा वो सब हो गया, अभी बेसिक्स हो गए। अभी जो भी हमको सीखना है दैट इज ऑल गोइंग टू कम वाया क्वेश्चंस ओनली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चंस के साथ में स्ट्रगल करना, उनको मल्टीपल एंगल्स मल्टीपल तरीकों से सॉल्व करना is what is going to give you more and more conceptual clarity। ठीक है, यही क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो।
ठीक है। राइट, ये पार्ट समझ में आया आपको? सुमित, कौन सी रिवीजन रिकॉर्डिंग्स की बात आप कर रहे हो? हाँ उत्सव, मैं आपका डाउट डिस्कस करता हूँ। सो एक बार ऑब्जर्व करना। इसी क्वेश्चन को कई बार स्टूडेंट्स कुछ गलत तरीके से भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो द मेथड 2 विच इज आई वुड से, इस बार मेथड 1 में क्या था? कीप द रिएक्शन सेपरेट। मेथड 2 इज राइट अ combined reaction. Sometimes students go for this, that they tend to write a combined reaction. कैसा? कार्बन है, O2 है, CO भी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है। ठीक है। Now can anyone point a problem with this reaction? ठीक है, बैलेंसिंग वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, अभी बैलेंस्ड है, बट स्टिल can you find a problem with this question or this equation? हाँ प्रथमेश, थोड़ा एलाबोरेट करो। डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू? यू हैव समथिंग टू से? हाँ अनु, आपने हाँ मतलब काइंड ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। थोड़ा और बेटर आर्टिकुलेट करो, और आई कैन पुट यू ऑन अनम्यूट एंड देन यू कैन से। अच्छा चलो, मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को सोचने में। What if I would have written the reaction in this manner? ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें भी कोई गड़बड़ तो है ही नहीं, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है। चाहिए तो कुछ और फैंसी सा ट्राई कर लो। ये देख लो, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इज एक्चुअली, मैं खुद ही CO और CO2 के कोफिशिएंट्स को फिक्स करता जा रहा हूं। इन द पहला इक्वेशन मैंने अज्यूम कर लिया
कि CO और CO2 1:1 के रेशियो में बनेंगे। मैंने अज्यूम ही कर लिया, मतलब मुझसे पूछा ही यही था क्वेश्चन में। लुक एट द फनी एस्पेक्ट, मुझसे पूछा ही यही है कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ CO और CO2 प्रोड्यूस बताओ, और मैंने जब रिएक्शन कंबाइन करके लिखा तो मैंने क्या करा, मैंने अज्यूम ही कर लिया कि ये 1:1 के रेशियो में है, या मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 2:1 के रेशियो में है, या मैंने अज्यूम कर लिया, तो मैंने आंसर ही अज्यूम कर लिया ना। मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल, राइट? सो लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट here, ठीक है? So let me highlight this point here itself, that this will be an incorrect approach, as we have assumed coefficient of CO and CO2 equal to 1 and 1, or as 1 and 1 respectively. Which is incorrect. This is why this is the incorrect approach. लेकिन if you are still adamant कि नहीं मुझे तो इसी अप्रोच से जाना है, तो फिर what you can do is you can take their coefficients to be variables, ठीक है? If we still want to combine, then say the coefficient of x, or sorry, coefficient of CO2 is x, and say the coefficient of CO भी, अच्छा मैं वही ले लेता हूँ, मैंने ऊपर एक्चुअली इसको y बोला था, CO2 का मैंने y बोला था, एंड CO का x लेना था, ठीक है? सो नाउ यू कैन मे बी टेक एन अटेम्प्ट, ठीक है? हाँ प्रथमेश आप सही कह रहे थे। हाँ वाई रावी, मतलब इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, साइमल्टेनियसली क्यों नहीं फॉर्म हो सकते CO एंड CO2? इट इनफैक्ट हैपन्स, मतलब लेट्स से जब आप घर पे भी, अगर आपके पास रेगुलर वाला गैस स्टोव है, नॉट द इंडक्शन वन, तो उसमें अगर येलो फ्लेम आ रहा है, ब्लू फ्लेम आ रहा है, तो इट इज अ साइन ऑफ कंप्लीट कंबशन कि CO2 ही बन रहा होगा। बट अगर येलो फ्लेम आ रहा है तो उसमें देयर इज अ गुड चांस दैट प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है। हाँ बट फॉर CO to get in oxidized to CO2, oxygen should be in excess, sufficiently excess quantity, कि जो CO बन गया वो भी CO2 में चला जाए, ठीक है? बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ऑक्सीजन गैस एक्सेस में हो, ठीक है? कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ विल compete फॉर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, बट अगर ऑक्सीजन खत्म ही हो गया तो फिर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा, ओके? सो यहाँ पर इफ यू स्टिल वांट टू अप्रोच बाय कंबाइनिंग, सो आई वुड रेकमेंड देन
say x moles of x is the coefficient of CO and y is the coefficient of CO2. So now if you will do the balancing, ठीक है, now if you will do the balancing, तो यहाँ पर x कार्बन कितना दिखेगा, x plus y होना चाहिए और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, as you can see x by 2 plus y. ठीक है, this is what the amount of or what the coefficient of oxygen should be. ठीक है, अब ये आपको 12 ग्राम्स दिया हुआ है एंड ये 20 ग्राम्स दिया हुआ है एंड बोला जा रहा है बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड. ठीक है, both carbon and O2 are completely consumed, so you can use moles of carbon upon coefficient of carbon should be equal to moles of oxygen upon coefficient of oxygen. ठीक है, या रेसिप्रोकल भी ले सकते हो इसका, आई डोंट माइंड. तो यहाँ पर मोल्स कितने हो जाएंगे 12/12 एंड कोफिशिएंट है x प्लस वाई एंड O2 के मोल्स 20/32 और कोफिशिएंट है x/2 प्लस 5. इसको आप रिजेक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट द आंसर ऑफ x अपॉन y as 3:1. ये समझ में आया? Will be the same answer, but this time with a different approach wherein I combined the two equations. ठीक है, however अब ये जो कंबाइन वाला करने वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन है वो यही है that we shouldn't assume the coefficients. अगर मुझे दिया होता, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में मुझे दिया होता कि किस रेशियो में CO और CO2 बन रहे हैं तो फिर मैं कंबाइन करके यूज कर सकता हूँ. ठीक है, नहीं ऋग्वेद, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि बिगर कंपाउंड्स में ही कंबाइन करो. It depends on the kind of information, the kind of data that has been given to you. Sometimes working separately is better, sometimes combined form is better. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डेटा ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैसे दिया हुआ है. अब इस चीज की प्रैक्टिस डेफिनेटली डे 1 पे आपको नहीं होती है. ठीक है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको अभी कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे दूं ऑफ पैरेलल रिएक्शंस एंड आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पैरेलल रिएक्शंस अपने आप में एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है. इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, ऑल राइट, मे बी वांट टू ट्राई अनदर क्वेश्चन. लेट मी सी, बुकलेट में से ही लेट मी गिव यू one of the questions to practice. Give me 1 minute, I'll just figure out. ठीक है, got one. ऑल राइट, ये ट्राई करो आप लोग. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ
iodine is 127 and atomic mass of chlorine is 35.5. ठीक है, in case you need this piece of information. हाँ कुणाल, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है एंड दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी. वो मैं आपको, ये वाला आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे तो फिर मैं आपको उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे लेके जाऊंगा. ऑलराइट, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 1:1 के रेशियो में. राइट, कैसे निकालेंगे? सेम थॉट प्रोसेस है. अगेन आई यूज्ड मेथड वन. ठीक है, आई केप्ट द टू रिएक्शन सेपरेट. ठीक है, आपको चाहिए तो आप ऐसे I2 प्लस Cl2 भी ले लो, आई डोंट माइंड. वांट टू कीप I तो भी चलेगा. ठीक है, मैं एक बार ये हाईलाइट कर देता हूँ. I प्लस Cl गिविंग ICl भी अगर आपको लिखना है तो भी ये चलेगा. ठीक है, और if you want to write I2 plus Cl2 giving 2ICl, this is as reaction 1 तो भी चलेगा. ठीक है, सबसे आंसर सेम ही आएगा. चाहिए तो आप ट्राई करके देख लेना, एंड ट्राई करने के बाद में देन थिंक अबाउट व्हाई इट वुड नॉट मैटर. ठीक है, सी इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होंगे. इफ यू
think more, think on the questions that you are given, थोड़ा और उनके बारे में conceptually सोचने की कोशिश करो, कुछ alternate methodology बनाने की कोशिश करो, right? तो definitely it will help you to become much more conceptually strong, ठीक है, rather than just only learning कि हाँ सर ने सोल्यूशन बता दिया हमने याद कर लिया, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी है, राइट। सो कमिंग बैक, यहाँ पर ICL के मान लो x मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई वांट टू आस्क देन I2 एंड Cl2 के कितने मोल्स बनेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए x/2 एंड x/2 मोल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। हाउ डिड आई आंसर दैट? बाय लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। Then there is another reaction in which say ICl3 is forming, ठीक है। So this is the case, this is the balanced equation, and इस केस में मान लो y moles of ICl3 बन रहे हैं, तो कितना I2 और कितना Cl2 लगेगा? Again by looking at the coefficient, this is y moles, whereas this will be 3 by, or sorry, this will be y by 2 moles and this will be 3 by 2 y moles. ये समझ में आया आपको? You look at the coefficients ना, इसके 1 से 2 ICl3 बन रहे हैं, राइट? इसका एक कोफिशिएंट है I2 का और ICl3 का 2 है, तो अगर इसके y मोल्स रहेंगे तो कितना मोल्स I2 का कंज्यूम होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसका 3 कोफिशिएंट है, इसका 2 कोफिशिएंट है, तो अगर इसके y बनाने हैं तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। यू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी, moles of I2, right? Total moles of I2 will be equal to x/2 plus y/2, right? And this should be equal to कितना दे रखा है यहाँ पर 25.4, 25.4 डिवाइड बाय 254, इसका मॉलिक्यूलर वेट 254 हो जाएगा, तो ये 0.1, this becomes your first equation. And if you look at total moles of Cl2, it will be again x/2, ऊपर से x/2 उठाया, ठीक है, एंड नीचे वाली इक्वेशन से 3y/2, एंड इसका दे रखा है आपको 14.2 ग्राम्स, सो 14.2 ग्राम्स corresponds to 0.2 moles, right? So from here once you do the addition you will get, ठीक है, upon solving you will get x is 0.1 and y is also 0.1, so the ratio is just 1:1, ठीक है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार देख लो आप, वही मेथड 1 हम लोगों ने फॉलो किया है, kept the reaction separate and assume that x and y moles respectively are getting formed of ICl and ICl3. ठीक है, is this clear now? $71 और $254 इनके मॉलिक्यूलर वेट हो गए ना। I2 का, अभी आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ I2 254 हो जाएगा ना। राइट, ओके ग्रेट। सो हाँ, धीरे धीरे आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शंस भी अब समझ में आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आप लोगों को भेजूंगा, बुकलेट में आप सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेंगे, यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी of working with such concepts. Now let me take one more concept, ठीक है।
we'll call it case of incomplete reaction. ठीक है, case of incomplete reaction or the concept of percentage yield. ठीक है, मतलब in fact let me kind of elaborate it further. Sometimes इसके बहुत सारे फैंसी नाम दिए जाते हैं, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज extent of reaction, or you can say percentage completion of reaction. So what is happening now is that अभी तक आपने नोटिस करा होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करें सब में एक अनसेट assumption रहा है that the reaction is completing, the reaction is undergoing completion. जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है. However, in practical life, in real life, that might not be always the case. हो सकता है because of some reason a reaction doesn't go to completion. हो सकता है किसी कैटलिस्ट के बेड पर हो रहा हो रिएक्शन और फिर कैटलिस्ट बेड हटा दिया या कैटलिस्ट रिमूव कर दिया तो फिर रिएक्शन बीच में रुक जाए, राइट? या कोई भी और रीजन हो सकता है. देयर आर थर्मोडायनेमिक रीजंस आल्सो, बट वो हम लोग समझेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद. बट डेफिनेटली पॉसिबल है कि कोई रिएक्शन पूरा ना हो. सो इन दैट केस आल्सो हाउ वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, हाउ वी डील विद इट, वो इस सब टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ठीक है, सो जैसे ऑब्जर्व करना. ठीक है, एक मैं बहुत ही सबसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपसे लेता हूं दैट A goes to 2B is a reaction. ठीक है, if we start with 1 mole of A and find that the reaction is only 40% complete, then determine the moles of B formed. Right, Jalaj, right, Sanidhya, right? This is pretty much a straightforward logic. नहीं रुद्र, हाँ सुमित रावी, राइट, आपके आंसर सही हैं. नहीं शेखर, नॉट करेक्ट. हाँ रुद्र, अभी आपका आंसर सही है. केदार आपका सही है, सुरावी नहीं, प्रथमेश यस, ऋग्वेद, उत्सव, सानिका, श्रेयस, गुड, ग्रेट. सो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट व्हाट इज हैपनिंग इज जितना रिएक्ट होना चाहिए था उसका 40% ही रिएक्ट हुआ. आइदर यू कैन थिंक इट, ठीक है,
सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, फ्रॉम reactants perspective, you can think, how will you think that 1 mole was supposed, or 1 mole was supposed to be consumed, but only 40% of it is now getting consumed. ठीक है, या तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A goes to B और A goes to 2B एंड 0.4 मोल से कितना बन जाएगा, ये आप बोल दोगे 0.8 मोल्स। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और यू कुड ऑल्सो रीड इट फ्रॉम प्रोडक्ट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, यू कैन वेरी वेल रीड इट फ्रॉम प्रोडक्ट्स पर्सपेक्टिव। प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से कैसा रहेगा, यहां पर ऑब्जर्व करना, 2 moles was supposed to be formed, है ना, मतलब A goes to B था, 2B था एक्चुअली, तो 1 मोल से ये कितना 2 मोल बनना चाहिए था, है ना, बट only 40% of expected amount is formed. So actual B formed is 2 into 40% and you get the answer as 0.8 moles. So दोनों के पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हो, you will get the same answer. So this brings me to the formula of how to write this concept of incomplete reaction. तो यहाँ पर देखना, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, और sometimes mentioned as percentage extent of reaction, ठीक है, और percentage completion of reaction, ठीक है, और भी कई बार इसके सिनोनिम्स रहते हैं। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है जो कि कंबशन रिएक्शन है, तो उसमें लिख देंगे परसेंटेज कंबशन कितना हुआ है। कोई रिएक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो पूछेंगे परसेंटेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सो देयर कैन बी मेनी सिनोनिम्स ऑफ दिस, व्हाट दे मीन इज, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर मैं रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, ठीक है, सो इट विल बी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, in case there are multiple reactants then go with limiting reagent, ठीक है, this is also crucial, अगर multiple reactants हुए तो limiting reagent के हिसाब से ही सोचना। so amount of reactant consumed, actually में कितना consume हुआ है, upon initial amount of reactant, ठीक है, जो भी मेरा limiting reagent था, ठीक है, into 100%. so either you can think in this manner or you can very well think from the perspective of product also, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, from the perspective of products also I can write this, amount of, or you can say actual amount of product formed upon expected
amount of product. That can also give you the answer of percentage yield of reaction or percentage completion of reaction. ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है. ठीक है, स्टैंड अलोन मैनर में भी इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं. समटाइम्स यू कैन मिक्स कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल बाय मिक्सिंग दिस कॉन्सेप्ट. हाँ, ऋग्वेद का अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने ये अमाउंट लिखवाया है, वो अमाउंट मास है कि मोल्स है. ऋग्वेद द आंसर कैन बी आइदर. ठीक है, अगर आप अमाउंट लिख रहे हो तो आप ऊपर मास लिखोगे नीचे मास लिखोगे, या फिर ऊपर मोल्स लिखोगे नीचे मोल्स लिखोगे, सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा. तो यू कैन आइदर डू इट इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ मोल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, सो लेट मी ask one more question, and I'll mix the concept of series reaction and this percentage yield. ठीक है, so let's say A plus 2B is giving C plus D, and this reaction has a 50% yield. ठीक है, मतलब 50% ही है, complete हो रहा है. And this is followed by another reaction that 2D is giving E, and say 2E plus F is giving G, and दूसरे रिएक्शन का yield 40% है, and तीसरे रिएक्शन का yield से 50% है. ठीक है, and मैंने आपको बोला है if we start with 1 mole each of A, B and F, ठीक है, then determine the moles of G formed. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मिक्स करते जा रहा हूं मैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहा हूं. Give me an answer to this question. जल्दी देने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से दो. ठीक है, बिकॉज आई डोंट, एग्जाम में आपको एक ही बार मौका मिलेगा, मैं थोड़े ना वहां पर चेक करने वैलिडेट करने आऊंगा कि सही दिया है कि गलत दिया है. टेक योर टाइम, डबल चेक इफ यू वांट, पेशेंटली, एंड फिर मुझे आंसर दो. ठीक है, रुद्र आपका आंसर गलत है. नहीं सुमित, आपने शायद कहीं थोड़ा गड़बड़ कर दिया है. रावी, अनु, ऋग्वेद, लावण्य, रुद्र, सबका गलत है. प्रथमेश, सानिध्य, गड़बड़ गड़बड़.
नहीं मानस। हम्म। हाँ, पूर्ण आपका सही है। प्रथमेश माइनर मिस्टेक ये दोबारा चेक करो। सानिका, अनु, सुमित, राइट, करेक्ट आंसर्स। नहीं मानस, अभी भी गड़बड़ है आपका आंसर। हाँ सानिध्य, अब आपने सही आंसर दिया है। नहीं कुणाल, गड़बड़ है। राइट केदार। राइट, सो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। नहीं रावी नहीं, मैं बताता हूँ अब यहाँ पे देखना आंसर किस तरीके से रहेगा। सो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सीरीज रिएक्शन एंड परसेंटेज यील्ड। तीनों का कॉन्सेप्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करना। इन द फर्स्ट a plus 2b is giving c plus d। ठीक है, एंड इसका यील्ड बोला जा रहा है 50% ही है। ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व करना, इसका 1 मोल और 1 मोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार के लिए यील्ड भूल जाते हैं, पहले पहले नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। that between these two, as you can identify, b will be the limiting reagent by moles upon coefficient। ठीक है, सो b पूरा कंज्यूम होगा एंड b के हिसाब से c बनेगा। ठीक है, सो c कितना बनेगा, इफ यू विल लुक एट द कोएफिशिएंट, 2 से 1 बनना चाहिए था, तो 1 से कितना बनेगा, यू विल गेट द आंसर एज 0.5। however, because the yield is now going to play a role, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था 0.5 बनना, पर इसका बनेगा 50% ही। ठीक है, 0.5 बनना चाहिए था, बट उसका सिर्फ 50% ही बनेगा। ये समझ में आया? एकदम एंड में मैंने अप्लाई कर दिया, तो एक्चुअली में सी कितना मेरा बना, सी मेरा बना 0.25 मोल्स। ऑल राइट, तो अब इस सी को मैं अगले रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, या सॉरी सी नहीं, मुझे डी कैरी को फॉरवर्ड करना है ना। ओके, डी के ऊपर फोकस करते हैं। लेट मी जस्ट रीराइट दिस एज डी एंड दिस एज सी। ठीक है, डी के ऊपर फोकस करना है। सो डी अब मेरा अगले रिएक्शन में जा रहा है। ठीक है, डी जा रहा है किस में, और इनफैक्ट 2D किस में जा रहा है, ई में, और इसका यील्ड भी 40% बोला जा रहा है। ठीक है, अब एक बार के लिए मैं यील्ड को छोड़ देता हूं, पहले मैं सिंपल एनालिसिस कर लेता हूं। दैट स्टार्ट में डी कितना रहेगा, ये एज इट इज मैं यहां से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, डी कितना है मेरा, 1/4 मोल। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ई कितना बन जाएगा।
ठीक है, अगेन इफ आई लुक एट द एनालिसिस बिटवीन डी एंड ई, डी का कोफिशिएंट 2 है, ई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/4 मोल से कितना बनेगा? I'll get my answer this to be as 1/8 moles. ठीक है, 1/8 moles बनना चाहिए, बट कितना बनेगा उसका? 40%। क्यों? क्योंकि यील्ड आपको दिया हुआ है 40%। सो एक्चुअली में जो अमाउंट ऑफ ई फॉर्म होगा वो होगा आपका, इफ यू डू दिस, तो ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 1/20 मोल्स ही बनेगा। ठीक है, नाउ this E is what is now going to carry in the next reaction. So the next reaction is 2E plus F is giving G, and this is also 50% yield. अब यहाँ पर आप नोटिस करना, E का मोल्स कितना है? 1/20। ठीक है, and F का मोल्स है 1. So you can clearly see again that E is the limiting reagent. तो analysis E के हिसाब से ही होगा, E will get consumed completely, and G का कितना बनेगा? If you look at the analysis, E का कोफिशिएंट 2 है, G का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/20 से कितना बनना चाहिए? You will get the answer to be 1/40. But the yield part now comes into play because 50% yield है, तो बनना 1/40 चाहिए था, but उसका 50% बनेगा, which is 1/80. That is what your correct answer is. समझ में आया? So in this question, not just these concepts plus your concentration, your focus, your ability to maintain a train of thought, ये सब लगता है. These are softer aspects. यही हमें सब होन करना है. These are the skill sets that we are working towards. तो इसमें पेन चलाओ भाई, हवा में आंसर मत करो. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई आपने कहाँ पे गड़बड़ करी है, क्या मिस्टेक करी है. यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजिशन टू आंसर. ठीक है, हाँ. सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोगों ने ऐसा अपना टाइम ओवरशूट कर दिया है. मैं ग्रुप पे होमवर्क शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, आप लोग क्या अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. ठीक है, अच्छा, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड ऑल तो यू कैन शूट राइट अवे. जैसे अनु का एक डाउट है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सोडियम कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज? सो अनु, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, दिस एक्चुअली लाइज into understanding some very fundamental properties about elements and their compounds. तो अब सोडियम कार्बोनेट में what is found is that उसके अंदर जो अब मैं टर्म यूज करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. लैटिस एनर्जी, और you can say the force of attraction between cations and anions is pretty strong. It isn't easily broken by heat. That is why it does not decompose readily. तो वो सब क्या है? These are things that you are going to come across when studying inorganic chemistry. ठीक है, all right. So लगेंगे रावी, अभी you will have a good number of lectures. Maybe entire next week also might go in this.
ठीक है. So अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा. I think you guys are aware about it. So in the next class, we'll start with the next chapter, and whole concept will run in parallel. ठीक है, because आपको cover up कराना है ना. ठीक है. So I will also communicate the same on the groups. I'll share the homework on the group as well. Till then, take care, guys. See you in the next class.